factorization. Today in this session we are going to complete the unit factorization. We are going to learn how to factorize. We will start from the basic. So whenever factorization term comes, this factorization, there are few rules, children. If these rules are clear for you, it will be very helpful for you to solve the factor, and we can do any type of sums then. You can factorize any of the polynomials. So for that purpose, let us go through the few rules which we should know for factorizing the polynomials. So first factorization, the very first thing you are going to check, common factor. What does this mean, common factor? If you find anything common, the first thing whenever you get the question in front of you, सबसे पहला क्या चेक करना है, गिवन टर्म्स में कोई भी टर्म्स कॉमन है क्या नहीं. अगर कॉमन है तो उसको बाहर निकालो. अगर कॉमन कुछ नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कम टू सेकेंड स्टेप. Okay, so what is the second step? Number of terms. Second step is number of terms. So you will count the terms, children. Count the terms and see how many terms are there. 2 terms or 3 terms or maybe more than that. So if it is 3 terms, तो अगर 2 terms रहा तो it is a common factor method. Common factor ले लो और उसको solve करो, या फिर कुछ formula apply करने का method है. We will do that later. Then now come to 3 terms. So whenever there are 3 terms, then the method that should come first comes in your mind is factorization. What is this factorization method, children? Factorization method, what are the rule for doing this factorization? The first step is, under this factorization again we will have few rules, children. The first one is find the product and sum. Now what is this product and what is this sum? Product means how to find the product? You have to find the product by multiplying the first term into last term. And how to find the sum? The sum is the middle term. जो भी middle term है वो आपका sum हो गया. Then ये हो गया आपका second rule. Third rule क्या है? What does the third rule say? Third step से splitting the middle term. Middle term को split करना है. Means you have to split the middle term. तो आपका सबसे पहला तो you have to split the 2 terms, and whenever you are splitting the middle terms, you have to keep these few things in the mind. What few things we should keep in mind? You have to find the 2 terms such a way that these 2 terms should satisfy 2 conditions. What are these 2 conditions? वो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और वो दोनों टर्म को, वही दोनों टर्म को ऐड करके या फिर माइनस करके आपको सम आना चाहिए. सम मतलब मिडिल टर्म. तो ऐड करके या माइनस करके, हमारे मैथ्स में कभी भी ऐड या माइनस दोनों एक साथ नहीं आ सकता है. तो ऐड करके या माइनस करके, उधर भी एक आपको ऐड करना है या कि माइनस करना है. ऐड करना है. कब ऐड करना है? जब आपका प्रोडक्ट प्लस रहेगा. तो प्रोडक्ट प्लस रहेगा तो आपको ऐड करके सम मिलना चाहिए. अगर प्रोडक्ट माइनस रहेगा तो आपको वही 2 टर्म को माइनस करके आपको सम मिलना चाहिए. ओके, सो दिस ओवर. तो आपको 2 टर्म मिल गया. आफ्टर फाइंडिंग द 2 टर्म्स, देन यू आर सपोज टू गिव साइन टू द टर्म्स. मुझे दोनों टर्म को साइन देना है. तो साइन देने के लिए सबसे पहला हमको किधर जाना पड़ेगा? प्रोडक्ट के पास ही जाना पड़ेगा. प्रोडक्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास 2 कंडीशन है, दोनों भी प्लस या फिर दोनों भी माइनस. दोनों टर्म को प्लस साइन दो या फिर दोनों टर्म को माइनस दो. प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो मेरे पास कंडीशन एक्चुअली एक ही है, एक प्लस एक माइनस, या फिर एक माइनस एक प्लस. एक टर्म को प्लस दो, एक टर्म को माइनस दो, या फिर माइनस और प्लस. तो जैसे फिर से दो ऑप्शन आया. और मैथ्स में जैसे मैंने बताया, कभी मैथ्स में एक साथ 2 साथ में नहीं आ सकता है. तो दोनों प्लस कभी आएगा? दोनों प्लस तब आएगा. ये कौन बताएगा कि दोनों टर्म को प्लस देना है कि माइनस देना? हमको कौन बताएगा? सम बताएगा. अगर आपका सम पॉजिटिव है तो दोनों टर्म को पॉजिटिव दो. अगर आपका सम नेगेटिव है तो दोनों टर्म को नेगेटिव दो. सिमिलरली प्रोडक्ट प्लस और माइनस का भी करना है. किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना है, कैसा मालूम पड़ेगा? अगेन सम बताएगा. अगर आपका सम पॉजिटिव साइन है, सम का साइन पॉजिटिव है, तो जो 2 टर्म में से जो ग्रेटर नंबर है उसको पॉजिटिव देगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव देगा. सिमिलरली अगर आपका सम नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव. चलिए ये वीडियो आप लोग और एक बार गो थ्रू करना, और जब आप लोग इसका रिलेटेड सम्स करेंगे ना तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. तो लेट अस डू फ्यू सम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 8th practice set 6.1. See, in practice set 6.1 I am taking the 4th sum.
बिकॉज इन दिस फोर्थ सम ना ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड. थोड़ा आपको पहला रूल से आपको मालूम पड़ेगा यार. चलो पहले ये वाला करते हैं हम लोग. let us do this one first. Okay, 5y square plus 5y minus 10. So what does the rule says? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, कॉमन फैक्टर. यू विल सी वेदर एनीथिंग इज कॉमन इन ऑल दिस थ्री टर्म्स. येस, आई कैन सी कॉमन. व्हाट इज कॉमन ईयर 5. सो व्हाट विल आई डू, कॉमन फैक्टर कॉमन मिला तो उसको ब्रैकेट के बाहर निकालो. सो आई विल टेक कॉमन. सो ईयर they write equal to children always. The step continuity of steps you should maintain this by equality sign. 5 कॉमन निकाला तो इधर आ गया y स्क्वायर. ये 5 बाहर आ गया, ये भी 5 बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, प्लस y माइनस ये 10 था तो 10 मीन्स 5 इंटू 2. इसमें से 5 तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, 2. सो दिस ओवर. तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कॉमन फैक्टर. सेकेंड स्टेप, नंबर ऑफ टर्म्स. काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स नाउ इनसाइड द ब्रैकेट चिल्ड्रन. नहीं तो ऑलरेडी ये मल्टीप्लिकेशन है, सो वी हैव टू सेट, वी आर सपोज टू फैक्टराइज दिस. तो मेरे पास कितना टर्म है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 मीन्स आई हैव 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड द लास्ट टर्म. सो आई हैव 3 टर्म्स. सो 3 टर्म्स मीन्स दिस वन. सो 3 टर्म्स, तो हमारे 3 टर्म्स रहेगा. तो व्हाट डज द रूल से, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड करना है. फैक्टराइजेशन मेथड मुझे पहला क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट एंड सम. How to find the product? Product means multiply the first and the last term. So let us find the product first. So product मैंने लिख रही हूँ. I am writing on the right hand side children. Product. Multiply the first and the last term. First term is y square and the last term is, write with the sign. Don't forget to take the sign, minus 2y square. तो मुझे product मिला minus 2y square. Then next is find the sum. Sum means, what is sum? Sum means middle term. So which is the middle term here? Plus 1y. तो sum भी find out करो. Sum means plus 1y. हो गया. Then next term is, after this ये हो गया अपना, ये भी second rule हो गया. Second rule also over. Then third one, splitting the middle term. You have to split this middle term. मतलब मुझे 1y को split करना है. So while we are splitting the middle term, there are again few rules which we cannot overlook. What does the two rules say? वो 2 टर्म जो मुझे फाइंड आउट करना है, स्प्लिट करके फाइंड आउट करना है, वो 2 टर्म ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए. प्रोडक्ट मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके 2 मिलना चाहिए, और वही दोनों टर्म को ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके. अभी मैंने जैसा बताया कि मैथ्स में ऐड सब्सट्रैक्ट दोनों एक साथ एक ही टाइम पे नहीं होता है. ओके, एक दो नंबर्स के बीच में एक साथ हम लोग ऐड भी माइनस भी नहीं कर सकते. तो वहाँ पे ऐड करना है क्या माइनस करना है, वो मुझे कौन बताएगा, प्रोडक्ट बताएगा. तुम्हारा प्रोडक्ट का साइन क्या है, प्लस रहेगा तो ऐड करना, ऐड करके सम मिलना चाहिए. माइनस रहेगा तो माइनस करके, प्रोडक्ट अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके सम मिलना चाहिए. नाउ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ध्यान दो, मुझे मल्टीप्लाई करके 2 मिलना चाहिए. ऐसा टर्म फाइंड आउट करो, मुझे मल्टीप्लाई करके 2 मिलना चाहिए, और वही 2 टर्म को माइनस करके 1 मिलना चाहिए. वाई या सब्सट्रैक्टिंग, माइनस करके 1 क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का साइन माइनस है. तो 2 का फैक्टर चिल्ड्रन, 2 ये बहुत सिंपल है. 2 का फैक्टर भी वेरी इजीली वी कैन से 2 1s are 2, 2 1s are 2. अभी 2 1s are 2 तो मिल गया. अभी उसका जैसा कि मैंने बताया 2 1s are 2. अभी इसको देखो माइनस करके 2 - 1, मुझे सम भी मिल रहा है. मल्टीप्लाई करके मुझे 2 × 1 2 मिला, और इन दोनों को माइनस करके 2 - 1 करके 1. मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट माइनस है बोल के. ओके, हो गया इतना. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारा ये स्टेप हो गया, ये भी स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन टू द 2 टर्म्स. इन दोनों टर्म को साइन देना है. तो साइन देने के लिए पहले हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे हमको भाग के जाना पड़ेगा, वेयर वी शुड रन एंड गो, वी शुड रन एंड गो टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट विल हेल्प अस. तो प्रोडक्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो मेरे पास 2 कंडीशन है, दोनों प्लस दोनों माइनस. प्रोडक्ट अगर मेरा नेगेटिव है, मेरे पास कंडीशन है प्लस माइनस, माइनस प्लस, वही है. तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट का साइन है नेगेटिव. तो प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब कौन सा वाला रूल, ये वाला प्लस माइनस, मतलब 1 प्लस 1 माइनस. लेकिन किसको प्लस किसको माइनस हो मुझे कैसा मालूम पड़ेगा, 2 को प्लस देना या फिर 2 को माइनस देना मुझे कैसा मालूम पड़ेगा, वो मुझे कौन हेल्प करेगा, हु विल हेल्प मी फॉर दिस, सम विल हेल्प मी चिल्ड्रन. सम अगर आपका पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, सम अगर आपका नेगेटिव है तो स्मॉलर नंबर
अगर सम आपका नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव। तो आपका सम का साइन क्या है? आपका सम का साइन है +1, प्लस है 1y मतलब प्लस। तो इन दोनों में ग्रेटर क्या है? 2 और 1 में 2 बड़ा है ना, तो 2 प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस। तो दोनों को y y बोल के करना है, 2y 1 नहीं 1y। गॉट इट? तो मुझे 2 टर्म मिल गया। नाउ हियर आई विल राइट द टर्म्स। तो दैट्स इक्वल्स टू 5 इंटू, ये ब्रैकेट को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, y²। इन द प्लेस ऑफ y मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो मुझे 2 टर्म मिला, 2y प्लस 2y मिला और माइनस 1y प्लस 2y माइनस 1y माइनस 2। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। तो ये हो गया अपना। फिर ये वाला पार्ट आपका रफ कॉलम के लिए यूज़ कर लो, मतलब ये वाला पार्ट आपको सिर्फ साइड में आपको आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट अगेन 5 को ऐसा ही रखना है। अभी कॉमन फैक्टर निकालो, इन दोनों को कॉमन फैक्टर। व्हाट इज़ कॉमन हियर? इन दोनों में कॉमन है y, तो y ब्रैकेट के बाहर आया। कैसा मालूम पड़ा y कॉमन है? इसको स्प्लिट कर लो तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। y² मीन्स y इंटू वाई प्लस 2y मीन्स 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2। क्लोज योर ब्रैकेट। अभी इन दोनों में दो टर्म का जोड़ी बनाओ, ये एक जोड़ी ये हो गया और ये जोड़ी हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? यू कैन सी y इज़ कॉमन। सी यार एक y, यहाँ पे भी दोनों में y कॉमन है, तो मैं y को ब्रैकेट के बाहर निकाल रही हूँ। इज़ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट y ब्रैकेट के बाहर। तो इधर क्या बचा? रेड वाला y तो बाहर आएगा, तो इधर एक y बचा है। साइन क्या है? प्लस, प्लस लिखा। इधर क्या बचा? 2। अभी माइनस तो बाहर आ गया, थर्ड, क्योंकि इस टर्म का साइन ही माइनस था, इसके लिए माइनस बाहर निकाला। प्लस रहेगा तो प्लस बाहर आएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, तो हम 1 लेगा। नथिंग इज कॉमन, टेक 1। और यहाँ पे आ जाएगा y। और ये साइन क्या था? माइनस था, लेकिन ब्रैकेट के जब वो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होएगा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस डालने से ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होती है। हमेशा ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, तो यू शुड ऑलवेज थिंक, जब भी आप नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर दिखा तो आप लोग ब्रैकेट के अंदर का टर्म को लिखते टाइम में ज़रा 2 बार सोच के लिखना, क्योंकि अंदर का साइन उल्टा हो जाता है। अभी यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट में भी y+2 कॉमन। यू कैन सी दिस y+2 एंड y+2 इज़ कॉमन। तो y+2 मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाला, y+2 ब्रैकेट के बाहर निकाला, ये कॉमन हो गया। इधर क्या बचा? y माइनस 1। नाउ नो नीड टू पुट दिस स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ ऑलरेडी तुमने इसको फैक्टराइज किया, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज़ योर फैक्टर 5 इंटू y+2 y माइनस 1। वेरी मच क्लियर। इन द सेम वे लेट अस डू वन मोर सम। सेम प्रैक्टिस सेट। 20x² minus 26x plus 8. Okay, same way. First step, what does the rule say? According to rule, common factor. Let us see whether anything is common. Yes, here it is common. What is common? 2 is common, because 22 में जाती है, 26 all are even number. So let me take 2 common bracket के बाहर। तो 2 बाहर एंड से इधर क्या हो जाएगा? 10x²। here you will get 10x², here you will get 10x² माइनस 26 मीन्स 2 इंटू 13, राइट। 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा? माइनस 13x। और 8 मीन्स 2 इंटू 4, तो 2 तो बाहर आ गया, तो इधर बचा 4। गॉट इट? नाउ स्प्लिट इट। वही सेम मेथड, कॉमन फैक्टर बाहर आया। देन नेक्स्ट टर्म इज नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट इट। 2 टर्म है क्या 3 टर्म है? सो हियर यू कैन सी इट इज़ 3 टर्म्स। सो 3 टर्म्स रहेगा, तो व्हाट डज द मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। तो व्हाट डज द फैक्टराइजेशन मेथड से? फाइंड द प्रोडक्ट एंड द सम। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो 10 इंटू 4, 10x² इंटू 4, दैट इज़ what it will give me? 10x² into 4 is 40 plus 40x². Okay, I am directly writing, children. Sum is middle term. Middle term means minus 13x.
ओके, तो हमने ये वाला स्टेप भी अपना हो गया, प्रोडक्ट एंड सम वाला मेथड हो गया, प्रोडक्ट निकाला फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सम भी मिला। नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या रूल है, यू हैव टू फाइंड द टू टर्म्स, यू हैव टू फाइंड द टू टर्म्स जिसको मल्टीप्लाई करके आपको 40 मिलना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ऐड करके या फिर माइनस करके 13 मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए, मतलब 13 है आपका सम। तो यहाँ पे ऐड करके माइनस करके दोनों साथ में तो नहीं आ सकती है, तो ऐड करना है या फिर माइनस करना है, कौन बताएगा, वो मुझे प्रोडक्ट बताएगा। प्रोडक्ट प्लस है ना, तो ऐड करके 13 मिलना चाहिए। सी दैट्स व्हाट द रूल से। सो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मिलना चाहिए और ऐड करके या माइनस करके तुमको सम मिलना चाहिए। ऐड कब करना है, जब प्रोडक्ट प्लस है, सम सब्सट्रैक्ट कब करना है, जब प्रोडक्ट आपका माइनस है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, ऐड करके, प्रोडक्ट मीन्स ऐड करके आपको, दैट इज़ फाइंड द टू टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके 40 और वही दो टर्म को ऐड करके 13 मिलना चाहिए। समझे, ऐड क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है बोल के। सो द टू टर्म्स आर 8 5 40, यू कैन सी 8x एंड 5x, 8 5 40 और 8 + 5 13। तो दो टर्म तो मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारा ये वाला भी स्टेप हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन टू द टू टर्म्स, साइन देना है। तो साइन देने के लिए पहले हमको किसके पास जाना है, प्रोडक्ट के पास जाना है। प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव या फिर प्रोडक्ट नेगेटिव। तो पहला चेक करो हमारा प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट गिवन टू अस। तो हमारा प्रोडक्ट, इन दोनों को साइन देना मुझे। तो साइन देने के लिए पहला मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव चिल्ड्रन, ओके, प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव मतलब मेरे पास दो रूल है, या फिर दोनों को प्लस दोनों को माइनस। कैसा मालूम पड़ेगा, प्लस देना है या फिर माइनस देना है। अभी या फिर दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस, कैसा मालूम पड़ेगा दोनों प्लस या माइनस, वो हमको कौन बताएगा, दैट विल बी नोन टू अस बाय तुम्हारा सम। सम अगर पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव, सम अगर नेगेटिव दोनों नेगेटिव। तो हमारा सम यहाँ पे नेगेटिव, यू कैन से -13x, तो दोनों भी नेगेटिव। नाउ यू गॉट दिस टर्म -8x -5x। अभी इसको लिखो यहाँ पे, 2 × 10x² -8x -5x + 4। नेक्स्ट स्टेप, कॉमन फैक्टर। अब दोनों में कॉमन क्या है चिल्ड्रन, हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि दोनों में 2 कॉमन है। तो कैसा मुझे मालूम पड़ा, यू कैन स्प्लिट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्प्लिट एंड राइट। ये मैं स्प्लिट करके आप लोगों को बता देती हूँ। ये इसको मैंने पूरा स्प्लिट किया और 8 को भी मैंने क्या किया, 2 × 2 × 2 × x -5 × x, तो 5 × x ही होगा, और +2 × 2। ये तो पूरा स्प्लिट हो गया। आई क्लोज द ब्रैकेट। नाउ इन दोनों में कॉमन निकालो, दो टर्म का जोड़ी, इन दोनों का जोड़ी, ये दोनों का जोड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों का जोड़ी में कॉमन क्या क्या अंडरलाइन करो। सो यू कैन सी दिस 2 इज़ कॉमन, एक 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, 1x इज़ ऑल्सो कॉमन। सो जो कॉमन है ब्रैकेट के बाहर निकालो चिल्ड्रन। सो 2x ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचा, तो 5x, राइट, माइनस इधर क्या बचा चिल्ड्रन, ये 2x तो बाहर आ गया, तो इधर बचा 2 × 2, तो 4 आ गया अंदर। ये वाला क्लियर। सिमिलरली इन दोनों में चिल्ड्रन ध्यान दो, नथिंग इज़ कॉमन, नथिंग इज़ कॉमन, यू कैन से नथिंग इज़ कॉमन। तो कुछ कॉमन नहीं, तो हम लोग 1 साइन क्या बाहर लेना, माइनस, अगेन माइनस आ रहा है चिल्ड्रन, ध्यान दो, माइनस कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1। तो इधर क्या बचेगा 5x, और ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस था, लेकिन अभी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और 2 × 2 ये भी इधर हो गया 4, क्लोज द ब्रैकेट। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, यू कैन सी 5x - 4, 5x - 4, ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो गया। इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, 2 × 5x - 4 ब्रैकेट के बाहर, इधर क्या बच गया, इधर 2x बचा है, इधर बचा है -1। ये आपका आंसर है। अब इसको स्प्लिट करके लिखो, मतलब ब्रैकेट हटा दो, बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दो, ज़रूरत नहीं है उसका, क्योंकि अभी सब तुम्हारा फैक्टर के फॉर्म पे ही है। So this is your solution children. I hope it is clear to all of you.